Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture for digital signal processing. So, in today's lecture, we will talk about the discrete time signal and system in the Z domain. Okay. So, what do people have studied till date? In previous lecture, we have talked about the convolution, the input and output of a system, and we see that the input of a system convolve with the actually with the impulse response of the system, and it generates an output. Now, convolution is a very complex problem, and let's suppose you have the relation that y of n is equal to x of n convolved with h of n. Now, if you need to find out h of n, then what will you do? So, in time domain, the calculations become difficult. That is why we go toward the Z domain. Okay. So, if there is the process is convolution in time domain, so it becomes multiplication in the Z domain. Okay. So, one of the motivation behind studying Z transform is to find out the system impulse response. Okay. So in this chapter we will study the Z transform, which plays the same role in the analysis of discrete time system and LTI system as the Laplace transform plays in case of continuous time signals and LTI systems. For example, we shall see in Z domain that the convolution of two time domain signal is equivalent to multiplication of their corresponding Z transform. Okay. So in addition, the Z transform provides us with a mean of characterizing an LTI system and response to various signal by its pole zero location. यानी पोल जीरो लोकेशन से हमें सिस्टम के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है. So this is time domain and this is the Z domain. टाइम डोमेन में यू हैव डिफरेंस इक्वेशन. ठीक है. ब्लॉक डायग्राम से आप जो है डिफरेंस इक्वेशन बना लेते हैं. ठीक है. और यहाँ पे अगर इस चीज़ों को देखें, यहाँ पे क्या है, यू हैव इम्पल्स रिस्पॉन्स. यहाँ पे क्या है, यू हैव ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. इम्पल्स रिस्पॉन्स को आप लोग कह सकते हैं कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो एक्चुअली इट बिकम्स ट्रांसफर फंक्शन इन दी Z डोमेन. ठीक है. सो 4-0 जो डायग्राम है उससे आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं. इट विल टेल्स यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम. ठीक है. सो वी विल स्टडी दीज थिंग्स ब्रीफली इन दिस चैप्टर. यहाँ पे देखें हाउ टू कंप्यूट द Z ट्रांसफॉर्म. ओके. So let's suppose you have a signal in time domain that is x of n. Now you have to find the Z domain. x of z को आप कैसे find करेंगे? n minus infinity to infinity x of n z की पावर माइनस n. अब यहाँ पे n का जो रेंज है वो डिपेंड करता है आपके x of n के रेंज पे. अगर x of n का रेंज जो है 0 से लेकर 4 तक वो डिफाइन है तो n जो है 0 से 4 तक होगा. ठीक है. So x of z is equal to x of n z की पावर माइनस n, while n is equal to minus infinity to infinity. This is called the direct Z transform. Now what is z? Z is equal to r e j theta. तो z जो है it is a complex variable जिसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका क्या है फेज एंगल भी है. ठीक है. और अगर इसका आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म. पहले हम Z ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, पोल जीरो लोकेशन से सिस्टम को कैरेक्टराइज करेंगे और उसके बाद जो है हम इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे यू हैव अ सिग्नल दैट इज x ऑफ n एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो x ऑफ n इज डिफाइंड फ्रॉम दिस इज 0, this is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. ओके. सो आपका जो x of z है, ठीक है, वो क्या बनेगा, x of z was summation n is equal to 0 to 1 2 3 4 5 0 to 5. ठीक है.
तो पहले आप x आप 0 पुट करें, तो x आप 0 क्या है 1 है, z की पावर माइनस 0 तो वो भी 1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा प्लस x आप 1 विच इज 2, z की पावर माइनस 1, फिर क्या होगा x आप 2 विच इज 5, z की पावर माइनस 2, फिर क्या होगा x आप sorry, this is x up minus 2, x up minus 3, this is equal to 4, तो x up 4 is actually 0, so इस वजह से x up 4 का जो आपके पास z है वो नहीं है जिसका कोफिशिएंट x up 4 हो। अब ना हो यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आप देखें कि r और c is equal to z not equal to 0। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास z के वो कौन से वैल्यूज है, ठीक है, जिस पे एक सब्जी जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 डिवाइड बाई जी प्लस 5 डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई जी क्यूब प्लस 1 बाई जी की पावर 5, ठीक है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि जी के हर एक वैल्यू के लिए जो है एक सब्जी डिफाइंड है, सिवाय अगर आप यहाँ पे z 0 पुट करते हैं तो एक सब्जी जो है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। एक सब्जी z के तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइंड है सिवाय 0 के। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड बाई z, तो z की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 0 विल बिकम इंफिनिटी, दिस विल बिकम इंफिनिटी, दिस विल बिकम इंफिनिटी एंड x ऑफ 0 इज इंफिनिटी। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास g के तमाम वो वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जिस पे आपका फंक्शन जो है डिफाइन वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आप देखें z की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करें, इवन अगर इंफिनिटी भी आप पुट करते हैं तो यू विल गेट 0। सो आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो z के तमाम वैल्यूज है सिवाय z इज इक्वल टू 0 के। यानी आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जन क्या है, z इज नॉट इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू जब 0 के बराबर ना हो तो उसके अलावा तमाम z की वैल्यूज जो है दैट इज एक्चुअली योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आप लोगों एफएससी में आप लोग पढ़े हैं कि आप लोगों के पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम जो है वो किसके बराबर होता है। लेट्स सपोज दिस इज ए आई आर आई माइनस 1 और ये 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, ठीक है, 1 से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है। तो दिस इज फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और इसका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। You have already studied these equation in your FSC mathematics, ठीक है। और अगर if this is infinite geometric series, so in case of infinite geometric series, the I will start from 0 to infinity. In case of finite geometric series, I will start from 1 to n. Also, you have to keep in mind that this is finite, 1 से n तक है. This is infinite, 0 से लेकर infinity तक है. So in this case, the sum of geometric series will be a1 divided by 1 minus r. ठीक है? So these were two important results that you need to remember because these results will be utilized in different numerical problems. Now let's see to this example. Okay. So in many cases we can express the sum of the finite or infinite series of G transform in a closed form expression. Now what is closed form expression? Let's suppose we have x of n is equal to what, 1 by 2 की power n u of n. Okay. Now just compute x of n. X of n is equal to when n is equal to 1. So sorry, when n is equal to 0 because u of n, because this is u of n. So u of n जो है वो 0 से लेकर infinity तक एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम n की जगह 0 पुट करेंगे। जब n की जगह हमने 0 पुट किया तो 1 आ गया, फिर n की जगह 1 पुट किया तो 1 by 2, फिर 2 पुट किया तो 1 by 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट किया 1 by 2 क्यूब और सिमिलरली। तो यहाँ पे देखिए दिस इज एक्चुअली, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज एक्चुअली अ ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज। जब आप इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो दिस बिकम्स एक्चुअली अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, अब यहाँ पे इसका क्या है, इसका z ट्रांसफॉर्म ले।
सो x आप z किसके बराबर है, x समेशन x आप n z की पावर माइनस n, तो ये 1 आ जाएगा, 1/2 z इनवर्स आ जाएगा, 1/2 होल स्क्वायर z माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दिस इज एक्चुअली योर व्हाट you can say this is your geometric series, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि x ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 n z की पावर माइनस n, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/2 z की पावर माइनस 1 n, ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि ये जो है, ठीक है, ये आपके पास दिस इज a, ठीक है। सो अगर ये जो है दिस पोर्शन, इफ दिस इज लेस देन 1, if this is less than 1, this portion is what, this is less than 1, then we can write x of z like this. We can write x of z like 1 divided by 1 minus 1/2 z minus 1. This is geometric series, ठीक है। So if this is less than 1, ठीक है, 1 divided by 2 z minus 1 is less than 1, or we can say that z is greater than 1/2. So it's mean यहाँ पे आप देखें कि your region of convergence is what? Your region of convergence is z is greater than 1/2. यानी if z is greater than 1/2, so it's mean that this equation will be okay. This will be satisfied. ठीक है। So region of convergence जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अब हम देखेंगे कि अगर टाइम डोमेन में दो डिफरेंट सिग्नल होते हैं तो हो सकता है कि उनका जी ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या हो, वो सेम हो, लेकिन उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह के एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखें x of n is equal to a of n u of n, where a of n जो है ये डिफाइंड है n is greater than or equal to 0 के लिए, और इसके अलावा क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए x of z n is equal to 0 to infinity a of n z of n, इसको मैं लिख सकता हूँ a z minus n, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो है 1 से लेस हो, a z माइनस 1 जो है ये 1 से लेस हो, तो मैं भी इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a z माइनस 1, मैं लिख सकता हूँ। अब यहां से a z माइनस 1 इज लेस देन 1, इट्स मीन कि z इज ग्रेटर देन a। दोनों साइड को आप z से मल्टीप्लाई करें तो ये भी z से मल्टीप्लाई करें, 1 भी z से मल्टीप्लाई करें, सो यू विल फाइंड दैट a इज लेस देन z, यानी z इज ग्रेटर देन a। सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये x ऑफ z जो है ये तभी आएगा जब a, यानी जब ये जो है दिस लेस देन 1। सो इट्स मीन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ग्रेटर देन अल्फा। Region of convergence is when z is greater than alpha. So this is z plane, this is x axis, this is y axis। हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया। यूनिट सर्कल क्यों ड्रा किया? क्योंकि यहाँ पे आप देखें यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स, आपके पास दोनों है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड्स भी है, आपके पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स भी है, ठीक है। सो जब आप दोनों को देखते हैं, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड्स और नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स, तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ यूनिट सर्कल हुज रेडियस इज अल्फा, ठीक है। सो इस आपके पास ये तमाम जो येलो प्लेन है जी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी अगर आपका जी जो है यहाँ पे लाई करेगा तो आपका जो एक्स ऑफ जी है वो क्या होगा, वो कन्वर्ज होगा, अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं होगा बल्कि डाइवर्ज होगा, ठीक है। Now let's see this example। इस एग्जाम्पल में क्या है कि x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस a ऑफ n u ऑफ माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये सिग्नल अगर आप ड्रा करें तो दिस सिग्नल इज 0 पाई इज ग्रेटर देन और
इक्वल टू 0, और ये आपके पास n इज इक्वल टू -1 और -1 से जो उस साइड पे वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यूज है, ये उसके लिए डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, -∞ टू -1 माइनस ए एन जी की पावर माइनस एन ए इनवर्स जी की पावर m। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पुट किया, एक्चुअली इन्होंने पुट किया है क्या, यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने ये पुट किया है कि ये n की जगह इन्होंने m यानी n+1 की जगह इन्होंने क्या पुट किया, m पुट कर दिया। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 1 to infinity a इनवर्स g की पावर m। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज यूर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, नाउ if a z की पावर -1 is less than 1, so we can write this a की पावर -1 z divide by 1 minus a की पावर -1 z, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a की पावर z -1। और ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो a z -1 is less than 1, इस साइड को भी z से मल्टीप्लाई करें, इसको भी z से मल्टीप्लाई करें तो a will be less than z। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से आया है। सो दिस इज एक्चुअली योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, नाउ जी ट्रांसफॉर्म जो है, अगर आप इसका जी ट्रांसफॉर्म ले लें a की पावर इन u ऑफ n, तो उसका भी जी ट्रांसफॉर्म यही आ रहा था पिछले इक्वेशन में, पिछले स्लाइड में आप लोग देख लें। यहां पे आप देखें, यस, कि दिस वाज योर सिग्नल, दिस वाज योर जी ट्रांसफॉर्म, लेकिन यहां भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखें। ठीक है, यानी जी ट्रांसफॉर्म दोनों सिग्नल्स का क्या है, सेम है। यहां पे आप देखें जी ट्रांसफॉर्म दोनों का ही है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये यूनिकली डिफाइन करते हैं आपके सिग्नल को, यानी टाइम डोमेन में सिग्नल जो है वो डिफरेंट होंगे, और दो डिफरेंट टाइम डोमेन सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म सेम हो सकता है, लेकिन उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सो कंपेयरिंग एग्जांपल ऑन स्लाइड 8 and 9, the expression for z transform is identical but the region of convergence is different. So this implies that the closed form expression for the z transform does not uniquely specify the signal in the time domain. In summary, a discrete time signal can be uniquely determined by its z transform and region of convergence. ठीक है, so if you want to uniquely describe the signal in z domain, so it is compulsory that you have x of z as well as the region of convergence, because not only x of z, because x of z does not define uniquely your signal in z domain. Okay, उसके साथ जो region of convergence है उसका होना लाजमी है। सो यहाँ पे आप देखें कि लेट्स सपोज यू हैव एक्स ऑफ n इज इक्वल टू a की पावर n u ऑफ n प्लस b in u ऑफ -n -1, so you have to find x of z, so x of z is equal to n is equal to 0 to infinity a अल्फा की पावर n z की पावर -n। ठीक है, क्योंकि u ऑफ n जो है वो डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी तक, और ये -n -1 जो है ये -∞ से -1 तक डिफाइंड है। तो ये आ गया n इज इक्वल टू -∞ टू -1 b ऑफ n z की पावर -n। ठीक है, ये अपनी जगह पे एज इट इज आ गया, इसकी जगह इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कि हम क्या पुट करें, अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे एक्चुअली अगर हम इसको -n कर लेते हैं तो a -n जो है इन्फिनिटी से 1 तक हो जाएगा, ऐसा ही है। ये नहीं, अगर हम पुट करते हैं कि m इज इक्वल टू -n, हम क्या पुट करते हैं, m इज इक्वल टू -n हम पुट करते हैं। तो जब हम m इज इक्वल टू -n पुट करते हैं
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये b इन की जगह क्या पुट हो जाएगा -m, और z -m की जगह क्या पुट हो जाएगा, m पुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, n इज इक्वल टू -∞ टू -1। तो अगर मैं क्या करूँ, m इज इक्वल टू -m कर दूँ तो क्या होगा, -m का रेंज फिर क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी होगा। n की रेंज -∞ टू -1 है, तो -n का रेंज क्या होगा, इन्हें अगर इसको मैं फ्लिप कर दूँ तो 1 टू इन्फिनिटी होगा। फिर मैं -m की जगह में m पुट कर रहा हूँ, तो m कहाँ से हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं -m की जगह m पुट कर रहा हूँ, तो n की जगह -m पुट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें, n की जगह मैं -m पुट कर रहा हूँ, -m की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, m पुट कर रहा हूँ। इससे m कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, सो फिर आप लोगों ने क्या किया कि ये आपके पास कन्वर्ज होगा, when this is less than 1 this will converge when this less than 1। तो यहाँ पे आप देखें az की पावर -1 is less than 1, सो आप इस साइड पे भी z मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे भी z मल्टीप्लाई करें, सो इट मीन कि z इज ग्रेटर देन अल्फा। अब ये भी अगर आपसे इफ दिस आल्सो लेस देन 1, तो b -1 z जो है ये भी 1 से जब लेस होगा तो इट्स मीन के इसको भी b से मल्टीप्लाई करो, इसको भी b से मल्टीप्लाई करो, तो z विल बी लेस देन b। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अब ये जो है दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे देखें कि कंबाइंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो आपके पास ये एक साथ z जो है ये कब आपके पास एग्जिस्ट करेगा, ये एक्सप्रेशन कब आपके पास आएगा, जब दोनों का जो कॉमन रीजन आप कन्वर्जेंस हो। तो यहाँ पे आप देखें कि पहला जो रीजन आप कन्वर्जेंस है, z इज ग्रेटर देन a, दिस इज z सो ग्रेटर देन a। ठीक है, एंड z ग्रेटर देन z लेस देन b, z लेस देन b। तो यहां पे जो कॉमन पोर्शन है, तो ये आपके पास क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। यहां पे आप देखिए कि वन इज व्हाट, वन इज द लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, द अदर इज द राइट साइडेड सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड द राइट साइड सीक्वेंस। ये क्या है, दिस इज लेफ्ट साइड सीक्वेंस, क्योंकि माइनस साइड पे है। तो राइट साइड सीक्वेंस का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये हमेशा एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल होगा। ठीक है, और जो उसके अगेंस्ट जो लेफ्ट साइडेड जो सीक्वेंसेस होंगे वो हमेशा जो है वो इंटीरियर की तरफ आएगा, वो सर्कल के इंटीरियर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन जब एक लेफ्ट और एक राइट हैंड मतलब अगर ऐसे दो सीक्वेंसेस का कम्बिनेशन आ जाए जिसमें टाइम जो है n जो है वो प्लस साइड पे भी हो, n जो है वो माइनस साइड पे भी हो, तो वहां पे जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस तरह का एक रिंग बनेगा। जब भी आप इस तरह के रिंग को देखोगे तो इट्स मीन कि आपका जो सिग्नल है वो n इज इक्वल टू वो n जो है माइनस साइड पे भी लाई कर रहा है, n जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी लाई कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रीजन ऑफ कन्वर्जन हो जिसमें एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो, तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का क्या मतलब है कि आपका जो सिग्नल है वो वो सिर्फ n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिफाइन है। ठीक है, अगर आपके पास जो है आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सर्कल का इनर एरिया हो, तो इट्स मीन के आपका जो सिग्नल है वो क्या है, व्हाट इज योर सिग्नल, आपका सिग्नल जो है वो माइनस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, n इज इक्वल टू -1 -2 -3 इस तरह। ठीक है, लेकिन जब आपके पास इस तरह का रिंग आ जाएगा तो रिंग इज एक्चुअली ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, कि इसमें आपके पास लेफ्ट साइड सीक्वेंस भी है और राइट साइड सीक्वेंस भी है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आप देखें कि योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज दिस। ठीक है, क्योंकि वन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z इज ग्रेटर देन a एंड वन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z इज लेस देन b। तो आप दरमियान में z रख लें, सो दिस इज z इज ग्रेटर देन a, तो z is greater than a, this is z is less than b, so z is less than b. So this is your region of convergence. ठीक है, so आज के लेक्चर में what you people have studied, this is some important signal and its Z transform pair,
लेट्स सपोज इफ यू है यूनिट इम्पल्स, तो उसका जी ट्रांसफॉर्म जो है 1 होगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा। इसी तरह यू आप इनका अगर आप निकालें ए इन यू आप इन, इस तरह इसका इन सब के अगर आप जी ट्रांसफॉर्म निकालें तो आपके पास इसका जी ट्रांसफॉर्म ये आएगा और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये यूनिकली डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे आता है कि एक साफ जी, इस सिग्नल का भी एक साफ जी ये है, इस सिग्नल का भी एक साफ जी ये है, दोनों का जी ट्रांसफॉर्म डिफरेंट है। सो ये दोनों का जी ट्रांसफॉर्म सेम है, हालांकि दोनों का टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपको यूनिकली बताता है सिग्नल के बारे में। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो तो आपका टाइम डोमेन का सिग्नल कैसे होगा, अगर वो इंटीरियर ऑफ दी सर्कल हो तो फिर आपका टाइम डोमेन सिग्नल कैसे होगा, ठीक है। और अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक रिंग हो तो फिर आपका सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में कैसे होगा। और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका जो एक्स ऑफ जी है, सिर्फ ये चीज़ आपके सिग्नल को जी डोमेन में डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि उसके साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का होना लाजमी है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।